Minister's reply. नहीं, please. Thank you, sir. मिनिस्टर का रिप्लाई Sir, I have heard everybody with rapt attention. नहीं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस चीज there के are- क्या पॉइंट है? चलो बैठ जाइए। बोले प्रॉब्लम है नहीं, क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर? 258 रूल में बोलना चाहती हूँ 258। बोलिए सर, इस बिल का एक हिंदी आया है वर्जन और एक इंग्लिश में आया है। ये दोनों में आप देखेंगे एग्जाम के लिए हिंदी वर्जन में लिखा है केवल ग्रेजुएट लोग अप्लाई करेंगे और इंग्लिश में लिखा है ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। ये नियम बन रहा है सर, हम किसको मानेंगे, हिंदी को मानेंगे या इंग्लिश को मानेंगे, बस ये बता दीजिए। माननीय मंत्री अपने जवाब में बोले। रिप्लाई। सर, मैंने बड़े ध्यान से सबकी बातें सुनी हैं। जो 4-5 बातें जो सभी के अच्छा ओके सर। सर, आई हैव हर्ड प्लीज नो इशू। okay I'll sir I ट्रांसलेशन अरेंजमेंट देयर। प्लीज I will रामनाथ जी। wait for this. I will wait for your direction, sir. Only your person will comment. Okay. Nothing else. Sir, I will speak in both the languages. I will speak in both the languages. Translation I don't know Tamil, sir. Sorry. Sorry, sir. कोई बात रिकॉर्ड करने जा रही है। रामनाथ जी। Sir, I will speak in both the languages. Okay, I will speak in both the Vaiko ji, languages. please. I will, Vaiko ji, I will make please. everybody Please take your understand, seat. sir. Okay. Please take your seat. गंदा आदमी है। Vaiko ji, please take your seat. Translation. Sir, I have heard everybody. आप आराम से बोलो। Sir, okay, sir. Go back to your seat. Mr. Vaiko, please. Mr. Vaiko. Mr. Vaiko, please go back to your seat. To your seat, please. And translation arrangement is already there. Sir, I have They will clear. Please. Translation arrangement is already there. Please take your seat. आप लोग कैसे कर रहे हैं? Please. आप बोले। sir. माननीय members, translation arrangement is already there. Please. Sir, first of all, let me. बैठिए ना आप। Please. ये क्या बात है? Please. सर, ये सब पॉलिटिकल एजेंडा। चलो आप बोलो। अपने हिंदी में बोलो। Please. बोलो। Mr. Vaiko, please take your seat. Sir, I have heard everyone, Please. and I must. Please. ट्रांसलेशन इज देयर। Please. Lord, how only the minister has taken permission. Nobody else. It will go on the record. Nothing. Sir, I have heard everyone with rapt attention, and I wish to thank everybody for expressing their concern for the medical education in this country. Sir, I'll be very brief, but I will try to cover all the 4-5 subjects that have been broadly raised by the members. Some of the issues have been related to NEET and the next exam, and there are still some misgivings about that and some, I think, misinterpretation of whatever has been written and how it is being interpreted. So I thought I will make it clear first. Sir, NEET, as we all know, it is already an institutionalized mechanism in the country. We already had a NEET exam for last few years, and it has been successfully accepted, received by the aspiring doctors in the country, and
It is right now executed in 13 languages, and the course syllabus for the exam takes into consideration of the syllabus of the various boards. That is what I know about it. And continuously there is a process of improvement in NEET. That's about the NEET exam, sir. Then about the next exam, sir. Please, please sit. No, not allowed. Please, no. Gulam. Not allowed. Not allowed. Then about the next exam, sir. Next exam is basically one exam which is the final year exam of all the MBBS students of all institutions all over the country. And in this NEET also now, you know, this aims and everything is all included in one exam now. This is the new, you can say, version after the previous version. So every institution, including aims and all the institutions of national importance, they will all be part of the NEET. Then for the next exam, there will be one exam. Sir, all MBBS students, they have to pass a final year exam in their colleges. So now there is going to be a final year exam, which is a common final year exam, which has both the things. The theory part is designed in such a way that in an objective manner, it also tests the clinical acumen like we do it in ECFMG plus. There is also a practical exam. So for a student to actually become an MBBS doctor, then he has to pass the theory exam also, he has to pass the clinical exam also, and then he gets his, after completing his degree, internship, he gets his degree. And similarly for this theory exam marks, with that he becomes eligible for getting an admission into a PG course. So it's as simple as that, that this one exam instead of 2-3 exams, he is giving, and with one exam, now he is passing MBBS, he is getting a license to practice after completing his internship, and he also automatically, based on his merit, he gets entrance into a PG course. Earlier, sir, let me complete. I think if you still have... It's not proper to... I had the patience to hear everything that you said. You please have the patience to hear me also. हिंदी पर आ जाओ, अब हिंदी पर आ जाओ। सर, जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर रेस किया गया वो कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स के बारे में रेस किया गया। Please take yourself, Mr. Vaiko. इस Translation arrangement is already there. के सदस्यों Mr. Vaiko, translation arrangement is already को there. बताना चाहता हूँ Please. कि पूरे अभी दुनिया के अंदर इंक्लूडिंग अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो मिड लेवल हेल्थ वर्कर्स का जो कंसेप्ट है, this is an official Manya members, translation arrangement is already there for everyone. concept of mid-level health workers is officially described हिंदी में बोलो आप। in WHO journals. It is described in Lancet also, and it is being implemented in many countries, very developed countries of the whole world. Sir, I have to. Nothing should go on record. Sir, nothing should go on record. It's not going on record. Except minister's speech, nothing is going on record. For members, translation arrangement is already available. So please listen. Have patience. Sir, my submission is this. It's not compulsory. No, it's not compulsory. Please. What is going on? What is going on? Sir, how can he declare? How can he declare? It's not compulsory. He is not chair. How can he declare to speak in this language of that language? Bloody fool. Throw him out.
करना मुझे बताओ, गाइड तो प्लीज टेक योर सीट्स। मैं तो नेचुरल में बोल रहा हूँ प्लीज सर। ये ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज टेक योर सीट, प्लीज टेक योर सीट। Translation arrangement is already available and there are recognized language translation system here. आप बोलिए ना, आप बताइए क्या बोले, कैसे हिंदी में बोले ना बोलिए हिंदी में। माननीय मंत्री जी अपना रिप्लाई दे, माननीय मंत्री जी अपना रिप्लाई दे। सर मैं इशू बना रहा है सर मैं बेसिक कुछ चीजें स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स के बारे में बहुत सारी मिसगिविंग्स है इस सदन के सदस्यों को। कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स ये कंसेप्ट सर सारी दुनिया के अंदर, जिसमें कि दुनिया के विकसित देश भी है, अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे, अब वहां पर भी ये एप्लीकेबल है। और जैसा मैंने कहा सर, ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के जर्नल्स में इसकी डेफिनेशन है। Nothing will go on the record. लैंसेट के अंदर इसकी डेफिनेशन है। You are not permitted और to change लेवल हेल्थ वर्कर्स वो दूसरे हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स के बराबर स्पेसिफिक्स जो It's सर्विस not going on record. वो उतनी ही कॉम्पिटेंस से दे सकते हैं। ये सिर्फ माननीय मंत्री की बात इंटरनेशनल है। जर्नल्स में है। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि ये कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स जो हैं, किसी ने कहा कि ये भी हो सकता है, वो भी कहीं बिल में किसी के बारे में नहीं लिखा। अभी एनएमसी बनेगी, एनएमसी को बनने के लिए 9 महीना है। उसके बाद एनएमसी अगले 3 साल के अंदर एग्जिट एग्जाम को, जो नेक्स्ट एग्जाम है, उसको इम्प्लीमेंट करेगी। और एनएमसी में 25 में से 21 सर डॉक्टर हैं और वो डॉक्टर मिलके जो तय करेंगे कि किस पर्टिकुलर प्रोफेशन के व्यक्ति को जो मॉडर्न सिस्टम से जुड़ा है। उदाहरण के लिए एक नर्स है, उसने 4 साल का कोर्स किया है, तो क्या उसको लिमिटेड जो एक सब सेंटर के ऊपर लिमिटेड मेडिसिन देने की, दवाई की जो बात की गई है, उसको और कितना 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, कितना बड़ा कोर्स उसको और करना है, क्या उसका करिकुलम होना चाहिए, ये सब कुछ जो है एनएमसी तय करेगी। और वो पब्लिक कंसल्टेशंस और मेडिकल प्रोफेशनल से सबसे इनपुट्स लेने के बाद करेगी। इसलिए कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स के बारे में जो भी यहाँ पर कहा गया कि ये क्वैक्स को, इन नो वे इज इट लाइक प्रमोटिंग क्वैकरी, बल्कि क्वैक्स को हमने इस बिल के अंदर और ज्यादा सजा देने का प्रावधान किया है। उनको जो है 1 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना, जो कि मेडिकल काउंसिल के अंदर बहुत ही नॉमिनल था। इसलिए किसी को भी इस प्रकार की ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर्स के बारे में। दिस इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड WHO सर्टिफाइड प्रैक्टिस एंड इट विल बी डिसाइडेड बाय एनएमसी आफ्टर स्टडिंग एवरीथिंग। और किसी को भी दे देंगे। यहाँ सब लोगों ने, इतने सारे लोगों का नाम लिया कि इसको भी दे सकते हैं, उसको भी दे सकते हैं, किसी ने कहा। सो देयर शुड बी नो मिसगिविंग अबाउट इट सर। फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है सर, यहाँ पर 50% जो है, जो सीट्स के बारे में जो है बहुत लोगों ने अपने कमेंट्स किए हैं। तो हम आपको स्पष्ट करना चाहते हैं कि देश में 80,000 के करीब MBBS की सीट्स हैं। इसमें से लगभग 40,000 सीट्स जो हैं ये गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर हैं, सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में है, 40,000 प्राइवेट में है। 40,000 जो सरकारी है उनमें बहुत नॉमिनल फीस लगती है, हमें पता है सबको। जो बाकी 40,000 प्राइवेट की है उसमें पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर कोई प्रोविजन नहीं था एक भी सीट की फीस को रेगुलेट करने का या उसको जो है कैप करने का। अभी हमारी सरकार ने ये तय किया कि 50% सीट जो है उसको जो है रेगुलेट भी किया जाएगा और उसको रूल्स के अंदर उसको कैप भी किया जाएगा कि वो कितना हो सकता है, कितने तक मिनिमम होना चाहिए। और बाकी जो 20% है, आप जानते हैं कि ये मेडिकल एजुकेशन जो है कंकरेंट सब्जेक्ट है। ये बाकी जो 50% सीट हैं ये प्राइवेट सेक्टर की, इसको स्टेट्स को रेगुलेट करने के लिए दे विल एंटर इनटू एन MOU विद द रेस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेजेस, क्योंकि किसी भी मेडिकल कॉलेज को स्टार्ट करने के लिए स्टेट को ही एसेंशियलिटी सर्टिफिकेट देना होता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है।
और वो अपनी स्टेट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको कितना प्राइवेट सिस्टम को एक्सपेंड करना है, कितनी उसकी ज़रूरत है। तो इसलिए जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाकी 50% सीटें जो है ऐसे हम लोगों ने खुली छोड़ दी है एक व्यवस्था के अंदर, जहाँ की मेडिकल एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में है। पहली बार 50% सीट को तो हमने यहाँ पर ही कैप कर दिया है, बाकी 50% को हमने स्टेट्स के लिए छोड़ दिया। इसके लिए किसी के मन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तीसरा, यहाँ पर बहुत लोगों ने इस बात के ऊपर चर्चा रेज की है, फीस पर भी कैप लगाएंगे रूल्स में, वो बताइए। वो जैसा मैंने कहा कि जो फीस है उसके ऊपर भी जो है रूल्स के अंदर कैप लगाएंगे हम लोग, ताकि कोई किसी प्रकार से इस प्रोविज़न का मिसयूज़ ना हो सके। तीसरी बात यह है कि सभी ने कहा कि ये जो स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन है ये एनएमसी में कम है। यद्यपि अगर आपको मैं बताऊं तो 25 जो एनएमसी के मेंबर्स हैं, इसमें 11 स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, 5 मेडिकल काउंसिल से और 6 जो है वाइस चांसलर्स के रूप में। इसके अलावा जो ऑटोनॉमस बोर्ड्स हैं उन चारों में भी एक एक स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, 11 और 4 15 हो जाते हैं। उसके अलावा एक जो हमारी जो कमेटी है, जो सर्च कमेटी है, जो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में काम करेगी, उसमें भी एक स्टेट का जो है रिप्रेजेंटेटिव। इस प्रकार से यद्यपि 16 लोग जो है इसके अंदर जो है स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैंने देश में जितने भी रेगुलेटर्स काम करते हैं, रिजर्व बैंक से लेकर और दूसरे रेगुलेटरी, सबके डिटेल्स स्टडी किए सर। सबके अंदर मेजॉरिटी जो है, यानी वास्ट मेजॉरिटी इज ऑल, बल्कि कई में तो 100% दे आर ऑल अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन इस सब के बावजूद भी, क्योंकि सब लोगों की मैंने यहाँ मंशा देखी कि दे वांटेड कि इसके अंदर थोड़ा और रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज़ किया जाए, इसलिए मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि सरकार की तरफ से हम इसके अंदर एक जो है अमेंडमेंट लेकर आए हैं, जो हमने अभी रिक्वेस्ट किया है कि जो ये सर्कुलेट भी हो गया है, जिसमें कि जो मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट मेडिकल काउंसिल से 5 मेंबर्स की जगह 9, और इसी प्रकार से जो स्टेट की यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो है 6 की जगह जो है 10 जो है रिप्रेजेंटेटिव आएंगे। और जो सदन की ये जनरल भावना है, इसका आदर करने की दृष्टि से इसको हम लोगों ने किया है। इसके अलावा सर जो है ब्रॉडली जो एक पावर के बारे में कहा गया है, कईयों ने कहा कि भारत सरकार इसको कैप्चर कर रही है, भारत सरकार कैसे रेगुलेशंस कर सकती है, भारत सरकार कैसे जो है इसके अंदर कोई भी डायरेक्शन दे सकती है, कोई एडवाइस दे सकती है। तो सर उसके लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि सेक्शन 45 ऑफ द बिल gives powers to the central government to give directions on policy matters to NMC and autonomous boards, ये इसमें है। The Indian Medical Council Act 1956 also had a similar provision in section 36, and this is as per standard clauses in all other acts setting up of various regulators। मैं इसमें एग्जाम्पल के लिए सिर्फ आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, सेक्शन 20 ऑफ AICTE एक्ट 1987, सेक्शन 75 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, सेक्शन 43 ऑफ PFRDA एक्ट 2013, सेक्शन 7 ऑफ RBI एक्ट 1934, सेक्शन 16 ऑफ SEBI एक्ट 1992, सेक्शन 30C ऑफ द चार्टेड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, सेक्शन 25 ऑफ ट्राई एक्ट 1997, सेक्शन 20 ऑफ UGC एक्ट 1956 एंड मैनी अदर्स। तो इसमें देयर इज नथिंग एबनॉर्मल। Section 46 of the bill empowers the central government to give directions to state governments for carrying out the provisions of the act, and this clause has been examined and cleared by the department related parliamentary standing committee in its 109th report. It is as per the recommendations of this committee also. सर इसके अलावा जहाँ तक मैं समझता हूँ कि और कोई जो आपके जितने भी विषय यहाँ पर आए, हमारे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई। आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू। आपने अपने समय के बहुत सारे आपने जो अच्छे रिफॉर्म्स और आइडियाज़ वगैरह दिए, इसको आई डोंट डिनाई कि आपके समय में भी कोई अच्छे आइडियाज़ नहीं आए, लेकिन मैं बड़े मॉडेस्टी से कहना चाहता हूं सर कि हमने आपके सारे जो अच्छे आइडियाज़ थे उनको बहुत डायनेमिक तरीके से उनको 5 साल में इम्प्लीमेंट किया। जो उस समय आइडियाज़ के रूप में थे, कोई ऐसा नहीं है कि हर एक, ये गवर्नमेंट का प्रोसेस एक ऑनगोइंग कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। आपने जो भी अच्छे काम शुरू किए, अगर वो उस समय सिर्फ आइडिया के लेवल पर रहे,
हमने उनको सबको इम्प्लीमेंट किया। बहुत सारी आपने भी अच्छी चीज़ें की एंड आई ऑल्सो सॉ मैनी गुड थिंग्स बीइंग डन बाय यू, तो इसलिए कोई हमें इसको स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपने कहा कि मैं समझता हूँ कि जितनी सीट्स MBBS के अंदर और PG के अंदर और जितने रिफॉर्म्स मेडिकल एजुकेशन में, जब यहाँ पर मेडिकल काउंसिल एक्ट के अमेंडमेंट पर डिबेट हुआ था, मैंने उन सबका बहुत विस्तार से उल्लेख किया था। और मैं बड़े गर्व के साथ ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में जितने रिफॉर्म्स हुए हैं और जितने उस रिफॉर्म्स के आउटकम्स हुए हैं इन टर्म्स ऑफ परसेप्टेबल एंड मेजरेबल चेंजेस, ऐसा पिछले 50-60 साल के इतिहास में कभी नहीं हुआ और हमें इस बात का गर्व है। और उसमें हमने आपके अच्छे आइडियाज़ को भी हमने इम्प्लीमेंट किया। हम ये नहीं कहते कि आपने अच्छे आइडियाज़ नहीं दिए सर। बाकी तो अभी जो जयराम रमेश जी के तो सारे मैं समझता हूँ कि जो कंसर्न थे वी हैव आई थिंक एड्रेस, शांतनु जी के भी। सिर्फ ये आदरणीय राम गोपाल यादव जी ने 2-3 बातें की थी जस्ट फॉर योर नॉलेज कि ये काउंसलिंग में क्या होता है, कि ये जो आपने कहा कि नीट काउंसलिंग शुड बी कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट, तो सर मुझे कहना है कि इसमें कोई किसी को दो मत नहीं हो सकता। मेडिकल काउंसलिंग सेल जो है DGHS में, इट होस्ट कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वेबसाइट, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। एंड वी विल टेक अप विद द स्टेट्स ऑल्सो फॉर ट्रांसपेरेंसी इन देयर काउंसलिंग, ताकि अगर कोई चीज़ों के अंदर कहीं पे कोई ट्रांसपेरेंसी में कमी है तो वी विल ट्राई टू फर्दर स्ट्रेंथन। और फिर जितनी वैकेंट सीट्स के बारे में आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बात किया, तो इसके लिए मेरे को बताना है कि नेम्स ऑफ कैंडिडेट्स अमाउंटिंग टू 10 times द लेफ्ट वैकेंसीज are sent to the colleges in the stray vacancy round at the end. The number of seats left vacant at the end of counseling is coming down each year now. ये जो आपने 2 बातें कही थी सर, मेरा ख्याल से ब्रॉडली इन्हीं 3-4 इश्यूज़ के इर्द गिर्द जो है आपने अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस किए हैं। नीट एग्ज़ाम के बारे में, नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में, आपने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के जो 50% सीट्स दिया, बाकी 50 का क्या होगा उसके बारे में, कम्युनिटी हेल्थ प्रोवाइडर के बारे में, और जो है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स के बारे में। आई थिंक ट्राई टू एक्सप्लेन इन ब्रीफ एवरीथिंग, टेकन केयर ऑफ योर इमोशंस ऑल्सो अबाउट मोर रिप्रेजेंटेशन टू स्टेट्स। मैं सर फिर वही बात दोबारा से रिपीट करना चाहता हूँ जो मैंने बहुत सारे लोगों ने इस बात का यहाँ पर मखौल उड़ाया कि ये इतना बड़ा रिफॉर्म कहाँ से हो गया। मैं अभी आपको फिर बताना चाहता हूँ कि जब इतिहास लिखा जाएगा तो नेशनल मेडिकल कमीशन को नरेंद्र मोदी जी की सरकार के एक बड़े रिफॉर्म के रूप में देश में रिकॉर्ड किया जाएगा। और आज का दिन जब आप इसको बिल को पास करेंगे, ये भी गोल्डन लेटर्स के अंदर लिखा जाएगा। आज हो सकता है आप इसका मखौल उड़ा सकते हैं, लेकिन भविष्य जो है उसके गर्भ में क्या है वो आप सब हम सब मिलकर देखेंगे। मैं आप सबसे विनती करता हूँ कि इसको आप सब यूनानिमसली पास कर दें और आने वाले समय के लिए देश के लिए एक नया मेडिकल एजुकेशन का इतिहास शुरू कर दें। मैं देश के अंदर सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को, सारे एस्पायरिंग जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं उनको, और जो डॉक्टरी पेशे के अंदर काम कर रहे हैं, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदस्यों को भी, सबको मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैंने ज़िंदगी भर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राइट्स के लिए लड़ाई लड़ी है, और मेडिकल प्रोफेशन का मैं आपसे कोई कम बड़ा सपोर्टर या समर्थक नहीं हूँ। आई हैव ऑलवेज फॉट फॉर प्रिजर्विंग एंड प्रोटेक्टिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द मेडिकल प्रोफेशन। इसलिए देश के किसी भी डॉक्टर को कोई भी किसी किस्म का शक शुबा नहीं होना चाहिए। ये जो बदलाव है ये उनकी ज़िंदगी के अंदर एक बेहतरीन बदलाव लाने वाला है, जिसको क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली परसीव भी किया जा सकेगा, आने वाले वर्षों में मेजर भी किया जा सकेगा। सर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि इस बिल को जो है सर एम्प्लॉयज़ के बारे में मैंने लोकसभा में भी कहा था कि नंबर 1 वी विल एडिक्वेटली कंपेंसेट देम, प्लस मेरे को भी वो मिलने आए थे। वी विल look at their issue with total compassion and try to find out a solution which is acceptable। उनसे consultative process भी ऑन करेंगे। आपकी जितनी चिंता है उतनी ही हम लोगों को भी उनके प्रति पूरी संवेदनशीलता से चिंता है। धन्यवाद।